Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study culture. So let's start the lecture. See, culture is the expression of our own nature which is in our living, thinking, daily activities which is are in art, literature, entertainment and pleasure. See, in a particular situation, how shall we react? Actually, it is decided by our culture. The word culture has been taken from Latin word cult, right? So culture is an English word. Culture is an English word which has been taken from the Latin word cult, and the meaning of cult is refine, right? Meaning of cult is refine, and the meaning of कल्चर इन हिंदी इज संस्कृति, राइट? तो जो संस्कृति है, संस्कृति हैज बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत, राइट? तो संस्कृति जो है एक संस्कृत वर्ड है और वी कैन से दैट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज. तो संस्कृति इज संस्कृत वर्ड और संस्कृति का मतलब भी होता है टू रिफाइन. Also संस्कृति वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम संस्कारा, राइट? और संस्कार का मतलब भी होता है प्यूरिफिकेशन. सो सिंपली वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ सोशल एलिमेंट्स दैट मेक अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू सोशल बीइंग इज कॉल्ड कल्चर, राइट? तो कुल मिलाकर किसी भी इंडिविजुअल को सोशल बीइंग में कन्वर्ट करने में जो सिस्टम काम करता है उसको ही कल्चर कहा जाता है, राइट? सो द सिस्टम ऑफ सोशल एलिमेंट्स दैट मेक अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू सोशल बीइंग इज कॉल्ड एज कल्चर, राइट? नाउ वी विल स्टडी डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, राइट? और यहाँ से हो सकता है 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज कल्चर, और 11 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट? सो 5 मार्कर क्वेश्चन और 11 मार्कर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन के लिए वी कैन यूज दीज definitions, right? So you must cram or you must study at least 2 definition, right? So now we will see the definitions of culture. First is E.B. Tybee, right? So according to E.B. Tybee, culture is that complex totality. Culture is that complex totality which includes all such abilities and practices as knowledge, belief, art, right? Sorry, knowledge, belief, art, ethics, custom, right? Law, etc., which human beings acquire as a member of society, right? So culture is that complex totality which includes all such abilities and practices as knowledge, belief, art, ethics, custom, law, right? Which human being acquire as a member of society. So this is the definition of E.B. Tybee, right? According to McIver and Page. So according to McIver and Page, culture is the expression of our own nature which is in our living, thinking, daily activities, which is in our art, literature, religion, entertainment and pleasure, right? So this is the famous definition. And according to Lindbergh, cultural, right? Culture can be defined as the system which includes the symbolic and material elements arising out of traditional patterns of behavior, right? Norms, beliefs, right? Conduct that are socially acquired and passed on the future generation, right? So this is the definition of Lindbergh, right? Now according to Ralph Piddington, right? So according to Ralph Piddington, culture is the total sum of all the material and non-material tools by which human beings satisfy their biological needs and adapt to the environment, right? This is the definition of Ralph Piddington. Now according to Howell, right? According to Howell, culture is the set of learned behavior patterns that represent the characteristics of the members of a society and thus are not a byproduct of biological inheritance, right? So these were the definitions through which we understood what is culture, right?
Now we will see main features of culture, and this may be asked as a level marker question, right? The question can be asked, what is culture, or define a culture, also define the main features of culture, right? So we will see main features of culture one by one. See, features of culture. First is culture is learned behavior. Second, culture is transferable. Culture improves social skill, right? And culture has idealistic provisions. Culture has the feature of customization or adaptation. Also, culture has affirmation of human need, and also different section of society possesses distinctive culture, right? So we will study in depth these features. First is culture is learned behavior. सी सो अभी हमने डेफिनेशंस में समझा था कि कल्चर इज नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हेरिटेज, राइट? सिंपली if a child is born in India but that child is brought up in America, so definitely he will acquire American culture, not of America, क्योंकि culture is not related to biological heritage, right? Actually culture is social heritage. So हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कल्चर क्या है, सोशल हेरिटेज होता है, इसीलिए चाइल्ड इज ब्रॉट अप इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसी प्लेस का जो कल्चर है उसी को चाइल्ड क्या करता है, एडॉप्ट करता है. सो आफ्टर बर्थ ह्यूमन लर्न्स थ्रू सोशलाइजेशन एंड एक्वायर्स कल्चर, राइट? दैट इज बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर. और चूंकि जो ह्यूमन होता है वो सोशलाइजेशन के माध्यम से जो है कल्चर को एक्वायर करता है, और इसी वजह से उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, बिहेव करता है. सिंपली, सो देयरफॉर सिंपली वी कैन से दैट कल्चर इज अ लर्नड बिहेवियर, राइट? और इसीलिए जो लुइस है, लुइस कॉल्ड कल्चर द होल ऑफ क्या हो जाएगा, सोशल ट्रेडिशन हो जाएगा. सो फर्स्ट इज कल्चर इज अ लर्नड बिहेवियर. सेकेंड हो जाएगा कल्चर इज ट्रांसफरेबल, राइट? वॉट एवर द कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, राइट? कल्चर वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन किया जाता है, ट्रांसफरेबल होता है, क्योंकि चाइल्ड जो कुछ भी सीखता है वो अपनी सोसाइटी से ही सीखता है. एंड बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? सो बोथ कल्चरल एंड नॉन material and non-material cultures are passed on from one generation to generation. और जो कल्चर है वो लैंग्वेज के माध्यम से, राइट, रिलीजन के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो है ट्रांसफर होता है. और वी कैन से दैट लैंग्वेज, रिलीजन, सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसफर ऑफ कल्चर, राइट? जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग बिकम फुली एक्विंटेड विद द आर्ट, नॉलेज, लिटरेचर, फिलोसफी एंड देयर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रियल वे ऑफ लिविंग बाय द कल्चर. क्लियर? थर्ड हो जाएगा कल्चर पोसेसेस सोशल क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा, राइट? इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, राइट? सो सोसाइटी जिन नॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है वो फर्स्ट एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो है पास ऑन होते रहते हैं. वहीं सोसाइटी में कुछ अनएक्सेप्टेबल क्या होते हैं, नॉर्म्स भी होते हैं. और दूसरी चीज यहां पर अगर हम देखें, सो कल्चर इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना, एक्चुअली कल्चर इज सोशल क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा. और इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी वॉट एवर नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड, दीज नॉर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन. देयरफॉर जितने भी क्वालिटी या जितने भी नॉर्म्स होते हैं, राइट,
उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। तो कल्चर ट्राइज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग इट्स मेंबर बाय कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी के मेंबर को बिहेव करने के लिए कुछ एक्सेप्टिव नॉर्म्स होते हैं, राइट, और उन्हीं नॉर्म्स को जो है सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा जो है फॉलो किया जाता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कल्चर पोसेसेस सोशल क्वालिटी, राइट, कल्चर पोसेसेस social quality. For an example, right, language है, art है, literature, religion, philosophy, custom, tradition, ethos, custom, law, etc. right? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कल्चर है वो पूरी तरीके से सोशली कंसेप्ट है। कल्चर possesses a social quality, right? Next is culture possesses आइडिएशनल क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा, राइट। सो अर्लियर आई टोल्ड यू दैट वट एवर इज एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी दैट हैज एंड दैट इज फॉलोड बाय द एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो भी एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, दैट एक्सेप्टेड नॉर्म्स आर फॉलोड बाय अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, और उन्हीं नॉर्म्स के माध्यम से ही जो किसी मेंबर का बिहेवियर होता है, राइट, ये जो भी बिहेवियर का पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, राइट। सो वी कैन से दैट द नेचर ऑफ कल्चर इज आइडियलिस्टिक, राइट, बिकॉज कल्चर इटसेल्फ इज फॉर्म्ड बाय कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव पैटर्न्स, और कलेक्टिव क्या हो जाएगा, हैबिट्स हो जाएगा। और सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है या एक्सेप्टेबल जो नॉर्म्स होते हैं, राइट, उन्हीं को क्या करता है, सोसाइटी के मैक्सिमम मेंबर्स के द्वारा जो है फॉलो किया जा सकता है। इसीलिए कल्चर बिकम्स आइडियल, राइट, इसीलिए कल्चर जो है वो आइडियल बन जाता है। नेक्स्ट इज कल्चर इज एडॉप्टिव इन नेचर, राइट। सी वी कैन से दैट कल्चर इज अ सोशल सिस्टम, जिसके माध्यम से जो ह्यूमन बीइंग है उसको सोशल ह्यूमन जो है बनाया जाता है। इफ टाइम चेंजेस, राइट, सोसाइटी में कुछ इन्वेंशंस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, तो उनके माध्यम से अगर सिचुएशंस जो है इम्प्रूव होती हैं या सिचुएशन चेंजेस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है कल्चर भी क्या होता है, चेंज होता है। सिंपली वी कैन से दैट इंडिया का जो इंडिया द कल्चर विच इज हैविंग राइट नाउ, राइट, इससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट जो कल्चर था वो एंशियंट इंडिया में था, राइट। सो वी कैन से दैट कल्चर इज एडेप्टिव इन नेचर। कल्चर इज डायनामिक ड्यू टू इट्स चेंजिंग नेचर, राइट, क्योंकि जो डिफरेंट जियोग्राफिकल और सोशल इन्वायरमेंट होता है, तो बिकॉज ऑफ different social environment or geographical environment, right, many changes take place in culture, therefore we can say that culture is adaptive in nature. Next हो जाएगा culture satisfies human needs. See, every smallest unit of culture, तो कल्चर की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वह भी किसी न किसी ह्यूमन नीड को फुलफिल करती है। सो एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर मेक्स सम कंट्रीब्यूशन इन द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स, देयरफॉर वी कैन से दैट कल्चर सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा एवरी सोसाइटी पोसेसेस डिस्टिंक्टिव क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, राइट। अब सिंपली वी कैन से दैट culture is also depend on geography, right, geography, climate. So on the basis of geography, climate and different situation, जो सोसाइटी का कल्चर होता है वह भी क्या होता है, अलग अलग होता है, राइट। सो वी कैन से दैट बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट जोग्राफी एंड डिफरेंट जोग्राफी, राइट, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पोसेसेस डिस्टिंक्टिव culture, right. So these were the features of culture. Also we can see that यही सोसाइटी की क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी होते हैं। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, देन वी कैन आल्सो डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, पहला क्या हो जाएगा, कल्चर इज लर्नड बिहेवियर हो जाएगा। सेकेंड इज कल्चर इज transferable. Third is, right, culture has ideal quality. Fourth is culture is adopted.
culture is dynamic and culture has physical and non-material, or we can say that culture possesses material and non-material aspects, right? So we can say that characteristics or features are लगभग समान है. So we have studied characteristics and features of culture, right? Now we will study concepts of culture, right? And यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. So we will study different concept of culture. First is cultural change. See, culture of a particular area depend on geography, climate and situation of that particular area, राइट? तो उस जगह की जैसे उस जगह की जो भी सोशल सिचुएशंस होंगी, सोशल कंडीशंस होंगी, राइट, जैसे ज्योग्राफी होगी, क्लाइमेट होगी, अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर इवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? और उस कल्चर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके मटेरियल एस्पेक्ट और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? कल्चरल चेंज कहा जाता है, राइट? सो सिंपली वी कैन से दैट द चेंजेस इन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर और इन एनी वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड कल्चरल चेंज. और जो कल्चरल चेंज है वो सिचुएशन चेंज होने की वजह से या फिर किसी दूसरे कारण से भी हो सकता है, राइट? पीटर सोरोकिन propounded the cultural change theory firstly, right? And according to Peter Sorokin, main factor of change in culture is the cultural cycle, right? So because of cultural cycle जो है कल्चर में क्या होता है? चेंज होता है. So this is the important fact according to Peter Sorokin, right? Who has propounded cultural change. So according to Peter Sorokin, main factor of the change in culture is the cultural cycle, right? Also Sumner has given 3 reasons for cultural change. So Sumner ने जो है cultural change के 3 reasons दिए हैं. First is 100% transfer of culture is impossible, right? We have studied culture is transferable from one generation to second generation, और जो कल्चरल ट्रांसफ़र होता है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता है, राइट? सो कल्चरल जो कल्चरल ट्रांसफ़र है इफ़ यदि ये 100% नहीं हो सकता है सो डेफिनेटली यह कल्चरल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. सेकेंड होगा चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, राइट? सोसाइटी की जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ज्योग्राफी है या जो भी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं वो अगर चेंजेस होती हैं, राइट, तो उसकी वजह से भी कल्चर चेंज होता है, राइट? थर्ड इज एडाप्टेशन, क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट हो जाएगा. हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कल्चर में कई एडॉप्शंस भी होते हैं, उसकी वजह से भी कल्चरल चेंज होता है, राइट? सो वी कैन कोट हियर प्रोफेसर डेविस, राइट? सो प्रोफेसर डेविस राइट cultural change includes all those changes that occur in any branch of culture such as in art, science, literature, philosophy, fashion, law, etc. and in the forms and rules of social organization, right? तो social organization में या फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जैसे कल्चर में या आर्ट में, साइंस में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो प्रोफेसर डेविस के अनुसार वही क्या होता है? कल्चरल चेंज होता है, राइट? और पीटर जो सोरोकिन है उन्होंने कल्चरल चेंज के लिए कल्चरल साइकिल को रिस्पॉन्सिबल माना है, तो वहीं सुमनेर ने इसके लिए जो है 3 रीजंस जो हैं दिए हैं. नेक्स्ट हो जाएगा कल्चरल चेंज, कल्चरल कॉन्टेक्ट हो जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. सी व्हेन 2 डिफरेंट कल्चर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन दिस इज कॉल्ड कल्चरल कॉन्टेक्ट. फॉर एन एग्जांपल, राइट, इफ यू आर गोइंग टू फॉरेन कंट्री सो यू विल मीट फॉरेनर्स, तो वहाँ पर फॉरेनर्स का जो कल्चर है और आपका जो कल्चर है वो एक दूसरे के साथ में क्या होगा? कॉन्टेक्ट में आएगा. सो व्हेन 2 डिफरेंट cultures come in contact with each other then it is called cultural क्या हो जाएगा? contact हो जाएगा, right? and it is because of the cultural contract that process of संस्कृताइजेशन और cultural acquisition क्या होती है? शुरू होती है. this is the real fact, right? so
because of cultural contact संस्कृतिजाइजेशन और कल्चरल एक्विजिशन स्टार्ट्स, राइट। क्योंकि जब दो कल्चर जो है, जब दो कल्चर कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, उनको एक जो है ईच अदर उनको क्या किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा, राइट। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट, जो कल्चर है वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो कल्चरल कॉन्टैक्ट की वजह से ही कल्चरल जो एक्विजिशन है वो टेक प्लेस लेता है, राइट, या टेक प्लेस होता है। साथ ही साथ जो कल्चरल एक्सपांड होता है वह भी कल्चरल कॉन्टैक्ट की वजह से ही होता है। थर्ड हो जाएगा कल्चरल ट्रांजिशन हो जाएगा और कल्चर ट्रांजिशन हो जाएगा। सी culture transition was given by Hurkowitz, right? So Hurkowitz has given culture transition concept. See, culture transition क्या होता है? We have seen that when two culture come into contact. So when two culture come into contact, they influence each other. अब जब दो कल्चर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, so definitely they will influence each other, and because of this influence, if any of them adopts some cultural elements from each other, right, or both adopt some cultural elements from each other, then it is called cultural diffusion. Understand here, यदि some cultural elements को एक दूसरे कल्चर जो है अडॉप्ट करते हैं, देन दिस वुड बी नोन एज कल्चरल डिफ्यूजन। बट इफ many cultural elements are adopted in place of few cultural elements, then it is called culture transition, right? So simply we can say that when two cultures come into contact, then definitely they would influence each other, and because of this influence, when many cultural elements are adopted in place of few culture elements, then this is known as culture transition, right? Now fourth is culture dissemination हो जाएगा। Simply when two cultures come into contact, definitely they will influence each other, और यदि उनमें से कोई भी एक कल्चर कुछ कल्चरल एलिमेंट्स को एडॉप्ट करता है तो उससे कल्चर एक्सपांड होगा, और इसी को ही क्या कहा जाता है, कल्चर डिसेमिनेशन कहा जाएगा, राइट। सो इफ अंडरस्टैंड हियर, सी इफ some cultural elements are adopted by another culture, then this would be known as culture dissemination. परंतु if many cultural elements are adopted in place of few cultural elements, then it is called cultural transition. See, fifth is contra culture. So what is contra culture? Actually J. Milton mentioned contra culture. तो J. Milton ने contra culture को क्या किया है, propound किया है, and contra culture refers to the culture of groups that not only differ from existing paradigm but challenges it also, right? तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पैराडिज्म है, राइट, न केवल उसका विरोध करते हैं बल्कि उसके लिए चैलेंजेस भी होते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट contra culture refers to the culture of groups that not only differ from the existing paradigm but also challenges it. Clear? For an example, bandits हो जाएगा, right? See, in our culture, right? In our culture, theft को जो है एक क्राइम माना जाता है, परंतु जो bandits होते हैं उनका खुद का एक क्या होता है, कल्चर होता है। तो the culture of bandit, right? Not only जो है हमारे कल्चर के अगेंस्ट में है बल्कि हमारे कल्चर को क्या करता है, चैलेंज भी करता है। नेक्स्ट इज कल्चरल रिलेटिविज्म। सी विंडम एंड एम.जे. ऑपलर मेंशंस कल्चर रिलेटिविज्म, राइट। सो जब कभी भी हम दो कल्चर्स के कुछ एस्पेक्ट को रिलेट करते हैं, राइट, व्हेन वी रिलेट टू एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कल्चर रिलेटिविज्म। और विंडम एंड एम.जे. ऑपलर हैज बीन mentioned the cultural relativism.
right? For an example, we can understand by the process of greeting. For an example, there are different cultural aspect of greeting. In India, we join hands together to greet, like this, namaskar, right? But in Western societies, right, वो they shake hand, right? और हेड को क्या करते हैं, थोड़ा झुकाते हैं. वहीं पीपल ऑफ जो समर ट्राइब है, right, Africa, so people of Samai tribe of Africa spit on each other, so they spit on each other. हम दोनों हाथ जोड़कर जो है नमस्कार करते हैं, right? तो कहीं पर जो है शेक हैंड्स होते हैं. so this is known as cultural relativism. Similarly, we can say that the concept of marriage in every culture, right? So whenever we compare or whenever we relate one particular aspect in different culture, then this is known as cultural relativism, right? Next is cultural backwardness. See, cultural backwardness is a fantastic concept. See, the process of, अगर हम देखें तो जो culture होता है, culture has two aspects. First is material, second is non-material, right? तो culture has two aspects. First is material aspect and second is non-material aspect, right? Non-material जो aspect होता है, इसमें culture की जो है ideology हो जाएगी, thinking process हो जाएगी, ideology हो जाएगी, right? Rules and regulations जो है आ जाते हैं. तो वहीं material जो aspect होता है उसमें culture के जितने भी जो फिजिकल होते हैं वो पूरा का पूरा आ जाते हैं. अब हम यहाँ पर अगर आपको ये दोनों क्लियर होंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, राइट? द प्रोसेस ऑफ मटेरियल कल्चर एंड लिविंग बिहाइंड ऑफ द नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड एज कल्चरल बैकवर्डनेस, राइट? तो जब कभी भी दो कल्चर कांटेक्ट में आते हैं और उनके कांटेक्ट में आने से यदि मटेरियल कल्चर में चेंजेस होता है, परंतु जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है, नॉन मटेरियल कल्चर, राइट, जैसे आइडियोलॉजी में, थिंकिंग प्रोसेस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो उसको ही क्या कहा जाता है? कल्चरल बैकवर्डनेस कहा जाता है. सो सिंपली द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल कल्चर एंड लिविंग बिहाइंड द नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल बैकवर्डनेस, राइट? एंड दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय अमेरिकन सोशलॉजिस्ट ऑसबर्न, राइट? सो ऑसबर्न ने 1922 में सोशल चेंज जो थी वो बुक लिखी थी. और जो अमेरिकन सोशलॉजिस्ट हैं ऑसबर्न हैज रिटन बुक सोशल चेंज इन 1922, राइट? और उन्होंने इसी बुक में जो था प्रपाउंड किया था कल्चरल बैकवर्डनेस को. सी, एंड इन सोशल चेंज ऑसबर्न हैज डिस्क्राइब्ड दैट जो कल्चर है उसका एक मटेरियल एस्पेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है, राइट? थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, फॉर एन एग्जांपल एयरप्लेन्स, रेलवेज, फैंस, राइट, वॉचेस, यूटेंसिल्स, etc आर इंक्लूडेड इन मटेरियल कल्चर, वेयर एज आर्ट, फिलोसफी, नॉलेज, बिलीफ, राइट, लिटरेचर, साइंस, etc come under non material culture, right? So art, philosophy, right, religion, thinking process, right, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर में आता है. और जो जितनी भी यूटेंसिल्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, रेलवेज हैं, ये किस में आते हैं? मटेरियल कल्चर में आते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी, राइट? इसके साथ ही ऑसबर्न ने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट, राइट, जो मटेरियल कल्चर होता है वो बहुत ही तेजी से बदलता है, राइट? मटेरियल कल्चर चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन नॉन मटेरियल कल्चर. सो सिंपली वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ दिस व्हेन मटेरियल कल्चर जो है व्हेन मटेरियल देयर इज अ progress of material culture and leaving behind the non-material culture is called as backwardness, right? And this theory has propounded by
अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, राइट, ऑकबर्न। नेक्स्ट हो जाएगा एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, राइट। सी, सो नाउ वी विल डिस्कस एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। See, Crover has mentioned two aspects of culture, right? और Crover के अनुसार, Crover believes that every culture is made up of these two aspects, and according to Crover, right? According to Crover, there are two aspects of culture, that is ethos and क्या हो जाएगा, eros हो जाएगा। Now we will understand what is ethos and what is eidos. See, the formal and external form. Understand here, the formal, right? The formal and external form that manifests itself in the building blocks of culture, right? Building block of culture is called eidos, right? तो जो culture का building blocks है वही क्या कहलाता है, eidos कहलाता है। तो the formal and external form that manifests itself in the building block of culture is called eidos according to Crover. And the other side of culture is ethos, which influence and determine its qualities, right, motivational beliefs and rhythms and its tastes, right. So we can say that जो eidos side है, right, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ईडोस साइड ऑफ इंडियन कल्चर इज मेड अप ऑफ कास्ट, वर्ण सिस्टम, राइट, विलेज पंचायत, राइट, जॉइंट फैमिली, etc. वाइल जो स्पिरिचुअलिज्म है वो किस में आता है, ईथोस साइड में आता है, राइट। सो द अदर साइड ऑफ कल्चर, the other side of culture, right, is ethos, which influences and determine its qualities, motivational beliefs, rhythms and its tastes. तो उसको क्या कहा जाता है, ethos कहा जाता है। और इंडियन कल्चर में ethos क्या है, स्पिरिचुअलिज्म है, जो कि जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, विलेज पंचायत है, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा सेल्फ कल्चर सेंट्रलिटी हो जाएगा, राइट। तो जब कभी भी हम कल्चरल कॉन्टेक्ट की बात करते हैं और या कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, सो व्हेन देयर इज अ कल्चरल रिलेटिविज्म, तो जब कभी भी कल्चरल रिलेटिविज्म कम होता है, उस स्थिति में जब कभी भी अपने कल्चर को प्रायोरिटी देना या अपने कल्चर को दूसरे कल्चर पर सुपीरियर समझना ही क्या कहलाता है, सेल्फ कल्चर कहलाता है, राइट। सो वेयर cultural relativism is lacking, there is a belief among different groups and individuals that their culture is superior to another culture. This concept is called cultural self-cultural centrality, right. नेक्स्ट इज कल्चरल क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर व्हेनेवर द टू डिफरेंट कल्चरल कम इन कॉन्टैक्ट दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही सम कल्चरल एस्पेक्ट आर अडॉप्टेड बाय अनदर कल्चर, एंड थ्रू दिस प्रोसेस जो कल्चर है उसका डिफ्यूजन होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज एथनिक सेंट्रलिज्म, और क्या हो जाएगा, एथनो सेंट्रलिज्म हो जाएगा। सो वी हैव स्टडीड हियर सेल्फ कल्चरल आइडेंटिटी, सेल्फ कल्चर सेंट्रलिटी, और वी कैन से दैट एथनिक सेंट्रलिटी। तो जब कभी भी सोसाइटी में जो एथनिक रिलेटिविज्म की कमी होती है, तो वेन एवर देयर इज अ लैक इन एथनिक रिलेटिविज्म, at that time there would be a tendency or principle under which one's ethnic group is considered superior to all other groups is called ethnic क्या हो जाएगा, ethnic centralism हो जाएगा। So when one's ethnic group is considered superior to all other groups is called ethnic क्या हो जाएगा, centralism हो जाएगा। Clear? Okay, now we will study importance of culture for human, और यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। What is the importance of culture for human being? So we will understand one by one. See, actually what we are today is our culture.
किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीके का रिएक्ट करेंगे या हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ये हमारे कल्चर पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हमारे बिलीफ हैं, हमारी आर्ट लिटरेचर है, ये सब कुछ कल्चर पर ही क्या होता है, डिपेंड करता है, राइट। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने में जो कल्चर है, राइट, कल्चरल जो वैल्यूज़ होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर ओवरऑल कल्चर का ह्यूमन पर क्या इम्पोर्टेंस होता है उसको समझते हैं। द फर्स्ट इज culture is a system by which human being becomes biological being to social being. Actually we have to live in a society, और society में रहते हुए ही, right, how can we live our life, right, how can we live our life happily, right, how can we enjoy, right, and how can we achieve our success, it actually depend on our culture, right। तो सोसाइटी में रहते हुए हमें हमारी लाइफ को एंजॉय भी करना है, सक्सेस भी अचीव करना है, और उसके लिए जो कल्चर है वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, बिकॉज कल्चर मेक्स अ सोशल ह्यूमन, राइट। तो कल्चर ही हमें क्या करता है, सोशल ह्यूमन बनाता है, और हम सोसाइटी में रहते हुए ही जो है हमारी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज कल्चर इज कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड क्या हो जाएगा, मटेरियलिज्म हो जाएगा। सेकेंड इज कल्चर टीचेस अस द मीनिंग ऑफ लाइफ और द वे ऑफ लाइफ, राइट, हाउ शुड वी लिव, राइट। तो वे ऑफ लाइफ को बताता है कि हमें हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, राइट। एक्चुअली आपकी जो सक्सेस है वो आपके कल्चर और आपकी सोसाइटी पर जो है डिपेंड करती है। हो सकता है कि यू बिलोंग टू अ बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, एंड इफ यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, सक्सेस होगी। परंतु बट इफ यू बिलोंग टू अ फॉरेनर कंट्री और यूरोपियन कंट्री, राइट, ओवर देयर यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, तो हो सकता है कि वहां पर ये कोई आम बात न हो, राइट। अमेरिका में जब तक आपकी इंटरनेशनल कंपनी नहीं होगी, हो सकता है आपको सक्सेसफुल ना माना जाए, राइट। तो कुल मिलाकर जो कल्चर होता है, राइट, कल्चर, हमारे देश का कल्चर, हमारे सोसाइटी का कल्चर ही हमें लाइफ के इम्पोर्टेंस को और द वे ऑफ लाइफ को ही क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट इज मैन इज द क्रिएटर और प्रमोटर ऑफ द कल्चर, एट द सेम टाइम कल्चर मेक्स अ मैन एज अ सोशल मैन, और वी कैन से दैट सोशल ह्यूमन। देयरफॉर अगर हम देखें कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करें तो वो कल्चर को एक ग्रेटेस्ट क्या बताती है, असिस्ट बताती है। जैसा हमारा कल्चर होगा वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी होगी, वैसे ही हमारी जो है थिंकिंग प्रोसेस होगी, वैसे ही हमारा क्या होगा, बिहेवियर होगा। इसीलिए कल्चर अगर हमारे देश का अच्छा होगा सो डेफिनेटली उससे हमारा भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। फोर्थ इज it is because of the culture that today human beings have been able to become civilized and progressive by passing through different stages of क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। तो जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें कल्चर की वजह से ही जो ह्यूमन है वो सिविलाइज्ड हुए हैं और इतना प्रोग्रेसिव हो पाए हैं। फिफ्थ इज in the form of culture itself, human beings have achieved an unprecedented skill through many ideas, method of behavior innovations, such as through culture, human develop their attitudes and knowledge about mutual communication, thought and क्या हो जाएगा, life हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कल्चर का इम्पोर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। Also, it is the culture that teaches us the lesson of morality, love, tolerance, peace to the individual, right। तो सोसाइटी में कैसे एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय करना है, कैसे पीसफुल लाइफ को जीना है, राइट। साथ ही साथ हमको टॉलरेट करना है। तो मॉरलिटी, लव, टॉलरेंस और जो पीस है दैट इज टॉट बाय कल्चर, राइट। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर
In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.